Hello, listening friends. We're glad you joined us today. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। I hope you remember what I said in the last message. मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पिछले संदेश में कहा था आपको याद है। Just let me remind you very quickly. बस मैं जल्दी से एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। We learned a powerful message that a child follows in his father's footsteps. हमने एक शक्तिशाली संदेश सीखा कि एक बच्चा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है And will do so to his detriment. और अपनी हानि होने तक ऐसा करता है। And we saw that demonstrated as Ahaziah followed in his father King Ahab's treacherous footsteps. और हमने इसे होते देखा जब अहज्या अपने पिता राजा अहाब के घिनौने पद चिन्हों पर चला। Ahaziah was injured, and rather than trusting in God, he consulted the god Beelzebub. अहज्या घायल हो गया और परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय उसने बालजबूब देवता से सहायता चाही, Whether he's going to live or die. कि वो बचेगा या नहीं। And we learned that Beelzebub was Satan himself. और हमने जाना कि बालजबूब खुद शैतान था। Read 2 Kings 1:3. राजाओं की दूसरी पुस्तक 1:3 पद पढ़िए। The angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, यहोवा के दूत ने एलिया तिशबी से कहा, Go up and meet the messengers of the king of Samaria and ask them, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह। This must have been on Mount Carmel. ये अवश्य ही कार्मल पर्वत की बात होगी। The reason I think that मेरा ऐसा सोचने का कारण is because that Mount Carmel is halfway between Samaria and Ekron. ये है क्योंकि करमल पर्वत शमरोन और एक्रोन के बीच में आधे रास्ते पर है। So he stopped them halfway. तो उसने उन्हें आधे रास्ते रोका। And the king knew that they did not make it all the way there. और राजा को पता था कि वो वहां नहीं पहुंचे जहां उन्हें भेजा गया था। Elijah sent them back. एलिया ने उन्हें वापस भेज दिया। He said to them, उसने उनसे कहा, Is it because there is no God in Israel that you are going off to consult Beelzebub, the god of Ekron? क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जा रहे हो? Now, it has been 10 years since the confrontation with Naboth and Ahab. अब नबोत और अहाब की घटना को 10 वर्ष बीत चुके हैं। Elijah is now ready to confront the second generation of godless leaders. एलिया अब ईश्वर रहित नेतृत्व की दूसरी पीढ़ी का सामना करने के लिए तैयार है। Elijah gets up and he meets the messengers on their way to Ekron and says to them exactly what the Lord had told him to say. एलिया उठा और उन दूतों से मिला जो एक्रोन को जा रहे थे और उनसे वही कहा जो यहोवा परमेश्वर ने उससे कहने को कहा था। Is it because there is no God in Israel that you are going off to consult Beelzebub, the god of Ekron? क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जा रहे हो? Therefore, this is what the Lord says. इसलिए यहोवा ये कहता है, You will not leave the bed you are lying on. जिस बिस्तर पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, You will certainly die. तू निश्चय मरेगा। The messengers go back to King Ahaziah and deliver the bad news. दूत वापस मुड़े और आकर राजा अहज्या को ये बुरी खबर सुना दी। Ahaziah says, Describe this man to me. अहज्या ने कहा, इस आदमी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। As soon as they described him, he knew it was Elijah. जैसे ही उन्होंने उसके बारे में राजा को बताया, उसे पता चल गया कि वो तो एलिया है। Ahaziah realizes that Elijah was a pain in his father's side, and now he is a pain in his side. अहज्या जान गया कि एलिया उसके पिता के लिए कष्ट का कारण था और अब उसके लिए भी पीड़ा का कारण है। I want to tell you something very important. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। Will you please listen carefully? क्या आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे? When you live a godly life in the midst of your unbelieving family members, जब आप अपने अविश्वासी पारिवारिक सदस्यों के बीच में रहकर धर्मी जीवन जीते हैं, or business associates, या व्यवसायी साथियों में रहकर, or neighbors, या पड़ोसियों में, you can become a pain on their side. तो आप उनके लिए दर्द का कारण बन सकते हैं। You don't go out of your way in order to become a pain on their side. आपको उनके लिए दर्द का कारण बनने के लिए कुछ अलग या गलत नहीं करने की जरूरत है। You are already a pain in their side simply because of your godly lifestyle. आप वैसे ही अपनी धर्मी जीवन शैली के कारण उनके लिए एक दर्द हैं। You are both a challenge and a frustration to them. आप उनके लिए एक चुनौती और निराशा दोनों हैं। You are both intriguing and irritating to them. आप उनके लिए उत्सुकता और चिढ़ दोनों हैं। You are both
an enigma and a rebuke to them. आप उनके लिए उलझन और डांट भी हैं। And eventually they will have to react in one of two ways. और अंततः उनको दो में से एक तरीके से प्रतिक्रिया करनी ही पड़ती है। Either they're going to repent या तो वो पश्चाताप करेंगे or they're going to be angry. या फिर वो क्रोधित होंगे। Either they will turn to God या तो वो परमेश्वर की तरफ फिरेंगे or they will be enraged. या फिर वो अति क्रोधित होंगे। This is exactly what was happening here. यहाँ बिल्कुल यही हो रहा है। Elijah's message and rebuke to him could make him repent, एलिया का संदेश और डांट उसे या तो पश्चाताप के लिए प्रेरित कर सकती थी, instead परंतु इसके बजाय Ahaziah became enraged. अहज्या क्रोध से भर गया, He became angry वो क्रोधित हो गया and he rejected God altogether. और उसने परमेश्वर को बिल्कुल नकार दिया। This king, like his father, इस राजा ने अपने पिता के समान ही rather than repent at the word of the living God, जीवते परमेश्वर का वचन सुन के पश्चाताप करने के बजाय chose bitterness and anger toward the man of God. परमेश्वर के जन के विरुद्ध कड़वाहट और गुस्से को चुना। So he sent another company of 50 to eliminate Elijah. तो उसने और 50 सैनिकों को भेजा कि वो जाकर एलिया को ढूंढ निकाले। In verse 9, 9 पद में the captain said, सेनापति कहता है, Man of God, the king says, come down. हे परमेश्वर के जन, राजा कहता है नीचे उतरा। This was disrespectful. ये अपमानजनक व्यवहार था। This is being irreverent, scornful, and rude. ये अनादरकारी, तिरस्कारपूर्ण और सख्त शब्द थे। This is a contemptuous way of speaking to the great prophet of the nation. ये देश के एक महान भविष्यवक्ता से बात करने का अपमानजनक तरीका था। This would be like talking to an elder and calling him boy. ये ऐसे था जैसे किसी बुजुर्ग के साथ बात करते हुए उसे हे लड़के पुकारा जाए। Elijah said, एलिया ने कहा, If I am a man of God, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं, may a fire come down from heaven and consume you and your 50 men. तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 सिपाहियों को भस्म कर दे। And wham! Fire came down from heaven and consumed them. और ये आकाश से आग उतरी और उन्हें भस्म कर डाला। The king still wouldn't repent. राजा ने फिर भी पश्चाताप नहीं किया। He sent another 50 of his soldiers. उसने अपने और 50 सैनिक भेजे। This captain did the same thing. इस सेनापति ने भी वैसा ही किया And the same thing happened again. और फिर वैसा ही हुआ। A third group was sent. फिर तीसरी टुकड़ी भेजी गई, But the third captain was probably wise. परंतु तीसरा सेनापति शायद समझदार था। If the king is a fool, I'm not going to be a fool. उसने सोचा होगा, यदि राजा मूर्ख है तो मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। So he spoke in humility to Elijah, asking him to come down. तो उसने एलिया को नीचे आने के लिए कहते हुए नम्रता के साथ निवेदन किया। In response to the man's humility, इस व्यक्ति की नम्रता के प्रति उत्तर में the angel of the Lord said to Elijah, यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, Go down with him. उतरकर उनके साथ चला जा। Elijah is no longer afraid as he was with Jezebel. एलिया अब भयभीत नहीं है जैसे कि वो इजबल से था। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? He is now going in obedience to the word of God. क्योंकि अब वो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हुए जा रहा है। He is going on the authority of the word of God. वो परमेश्वर के वचन के अधिकार से जा रहा है, Because he waited for a word from the Lord. क्योंकि उसने परमेश्वर से सुनने तक प्रतीक्षा की। And the Lord said, You can go. और यहोवा ने कहा, तू जा सकता है। So he went into the bedroom of King Ahaziah तो वो राजा अहज्या के शयन कक्ष में गया and he looked him in the eye और सीधा उसकी आंखों में देखा and he delivered the message himself. और उसने खुद उसे संदेश सुनाया। He said, Is it because there is no God in Israel for you to consult and have messengers sent to consult Beelzebub, the god of Ekron? उसने कहा, तूने एक्रोन के देवता बालजबूब से पूछने के लिए दूत भेजे, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछता? Because you have done this, you will never leave the bed that you are lying on. क्योंकि तूने ऐसा किया, इसलिए जिस बिस्तर पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा। You will certainly die. तू निश्चय मरेगा। The king was still not repentant, राजा ने फिर भी पश्चाताप नहीं किया and he died in accordance with the word of God. और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मर गया। The way we see God work in the scripture should teach us what pleases him and what does not please him. जिस प्रकार से हम वचन में परमेश्वर को कार्य करते देखते हैं, इससे हमें सीखना चाहिए कि उसे कौन सी बात प्रसन्न करती है और कौन सी नहीं। What honors him and what dishonors him. किस में उसका आदर है और किस बात में उसका अनादर है।
The very fact that he acted quickly back then should not make us think that he does not act like this today. ये तथ्य कि उस समय उसने तुरंत अपनी शक्ति प्रकट की, इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो इस तरह नहीं करता है. In fact, what happened there was the fulfillment of God's warning hundreds of years earlier. बल्कि जो वहां हुआ वो सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर की चेतावनी का पूरा होना था. In Leviticus 19:31, God said, लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय के 31 पद में परमेश्वर ने कहा, "Do not turn to mediums or seek out spirits, for you will be defiled by them." तुम ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना कि उनके कारण अशुद्ध हो जाओ. In Leviticus chapter 20, verse 6, God said, लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर ने कहा, "I will set my face against the person who turns to mediums and spirits." जो मनुष्य ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरेगा, मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होऊंगा. You see, God's judgment is not an arbitrary judgment. आप देखें कि परमेश्वर का न्याय अनिश्चित न्याय नहीं है. God's judgment only comes after a whole lot of warning. परमेश्वर का न्याय या दंड बहुत सारी चेतावनियों के बाद ही आता है. But here is the good news that I want to share with you at this hour. परंतु यह है वो खुशखबरी जो मैं इसी समय आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Whether you are in a generational sin, चाहे आपके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पाप हो, or whether you feel that you are in a bondage, या चाहे आपको यह लगता हो कि आप गुलामी में हैं, it would be erroneous and untrue if I were to stop here. यदि मैं यहीं रुक गया तो ये असत्य और गलत होगा. Because the Bible gives us good news. क्योंकि बाइबल हमें खुशखबरी देती है. And it is found in the rest of Matthew chapter 12. और ये मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के शेष भाग में मिलती है. Read verse 29 of Matthew 12. मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 29 पद पढ़िए. Jesus delivered a man from demon possession. यीशु ने एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा के पंजे से छुड़ाया. And he was accused of being an agent of Satan. और उस पर शैतान का दूत होने का आरोप लगाया गया. But Jesus told the Pharisees, परंतु यीशु ने फरीसियों से कहा, "How can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first tied up the strong man?" कोई कैसे किसी बलवान व्यक्ति के घर में प्रवेश करके उसकी संपत्ति को ले जा सकता है जब तक कि पहले वो उसे बांध न दे. Then he can rob his house. फिर ही वो उसके घर को लूट सकता है. What Jesus is saying is that he has entered into Beelzebub's very house. यीशु कह रहा है कि उसने बाल जबूब के घर में प्रवेश किया है. And he bound him. और उसे बांध दिया है. Every demon of hell scurrying, running from here to there. नरक का हर दूत चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ रहा है. In order to set the captives free. बंधकों को स्वतंत्र करने के लिए. Colossians 2:15 tells us कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 15 पद हमें बताता है that the Lord Jesus Christ disarmed the principalities and the powers of their weapons. कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं और उनके शस्त्रों की शक्तियों को विफल कर दिया. Only Jesus has the power to set you free. केवल यीशु में ही आपको स्वतंत्र करने की शक्ति है. Why? क्यों? Because by going to the cross of Calvary, Jesus disarmed Satan of his clutching power. क्योंकि कलवरी क्रूस पर चढ़ने के द्वारा यीशु ने शैतान से उसकी काबू करने की शक्ति छीनकर उसे निहत्था कर डाला. By going to the cross of Calvary, Jesus bound the strong man so that he no longer can have hold over you anyway. कलवरी क्रूस पर जान देने के द्वारा यीशु ने उस बलवान शक्ति को बांध दिया ताकि वो आगे से आप पर प्रबल ना हो सके. Whatever bondage you may be under today, आज आप चाहे किसी भी गुलामी में हैं, whether you feel it has been a generational bondage, चाहे आपको लगता है कि ये आपकी वंश दर वंश चलने वाली गुलामी है, or a personal bondage, या कि निजी गुलामी, Jesus can set you free right now. यीशु इसी वक्त आपको स्वतंत्र कर सकता है. From those generational sins that bound you and are now binding your children, you can be set free. उन पीढ़ी दर पीढ़ी पापों से जिन्होंने आपको दास बनाए रखा या अभी भी आपको गुलाम बनाए हुए हैं, आप इनसे स्वतंत्र हो सकते हैं. From those strongholds that you are seeing in your parents' life and with which you are struggling right now, Jesus can set you free. उन पाप पूर्ण दृढ़ गढ़ों से जो आप अपने माता पिता के जीवन में देखते हैं और जिनसे आप इस समय संघर्ष कर रहे हैं, यीशु आपको इनसे स्वतंत्र कर सकता है. You don't have to live in fear. आपको भय में जीने की जरूरत नहीं है. You don't have to live in anxiety. आपको परेशानी में जीने की जरूरत नहीं है. You don't have to live in worry. आपको चिंता में जीना जरूरी नहीं है. But the question is
this. परंतु प्रश्न ये है, Do you want to be freed? क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? Do you want to be freed from anger? क्या आप क्रोध से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? Do you want to be freed from resentment? क्या आप द्वेष से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? Do you want to be freed from self-pity? क्या आप आत्मखेद से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? Do you want to be freed from the critical spirit? क्या आप आलोचक आत्मा से स्वतंत्र होना चाहते हैं? Do you want to be freed from strongholds in your life? क्या आप अपने जीवन के दृढ़ गढ़ों से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? Do you want to be freed from drugs? क्या आप नशीली दवाओं से स्वतंत्र होना चाहते हैं? Jesus has already bound the strong man. यीशु ने बलवान जन को पहले ही बांध दिया है। If you have not felt its effect, it is because you have not come under the blood of Jesus Christ. यदि आपको अभी तक इसका प्रभाव महसूस नहीं हुआ है तो ये इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक यीशु मसीह के लहू के नीचे शरण नहीं ली है। All you need to do is to come under his power. आपको बस उसकी शक्ति के अधीन होने की जरूरत है। And if the Holy Spirit of God is speaking to you right now, और यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसी समय आपके साथ बात कर रहा है, I want to urge you to say, yes, Lord Jesus. तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहें, प्रभु यीशु हाँ, And I want to be set free. और मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। Jesus is inviting you to come and to come into his presence right now. यीशु आपको आने के लिए और इसी वक्त उसकी उपस्थिति में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। And I will invite you now to pray with me. और मैं आपको अभी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Say, Lord Jesus, कहिए, प्रभु यीशु, I want to be set free from what has held me for all these years. मैं उन सब बातों से स्वतंत्र होना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतने सालों तक रोके रखा। I will make a covenant today, not only to be delivered today, but every single day to come. मैं आज एक वाचा बांधना चाहता हूं, न केवल आज छुटकारा पाने के लिए परंतु हर आने वाले दिन के लिए छुटकारा। If you have prayed this prayer, यदि आपने ये प्रार्थना की है, you need to find another believer, आपको एक और विश्वासी को खोजने की जरूरत है, and he can pray with you and you can pray with him. और वो आपके साथ और आप उसके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। Perhaps there are those who are listening who are backsliding now and went away from the things of God. शायद कुछ ऐसे भी लोग हमें सुन रहे हों जो अब पीछे जा रहे हैं और परमेश्वर की बातों से दूर हो गए हैं। Perhaps there are siblings who have been separated from each other because of anger. शायद ऐसे भाई बहन हैं जो गुस्से के कारण एक दूसरे से अलग हो गए हैं। Perhaps there are neighbors and friends who have been separated by bitterness. शायद ऐसे पड़ोसी और मित्र सुन रहे होंगे जिन्हें कड़वाहट और गुस्से ने अलग कर दिया है। Perhaps there are some who are angry with God because they are being deceived by Satan. शायद कोई ऐसे हमें सुन रहे हों जो परमेश्वर के साथ क्रोधित हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें धोखे में रखा हुआ है। Repent tonight before you meet the Lord in the day of judgment. आज रात ही पश्चाताप करें इससे पहले कि न्याय के दिन आपका सामना यहोवा पर हो। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपको